Soma clonal variations are genetic and epigenetic changes produced during in vitro growth of plants. These changes may also have variation in phenotype or physical characters of plants, or these changes may be genetic or change in genetic makeup of any organism, and these changes may also result in the change in the level of expression of genes, which may produce altered level of expression of protein, and also consequently change in the physical characteristics of plants. The term Soma clonal variation was first used by Larkin and Scowcroft in 1981. Soma clonal variation term is used specific for plants produced through tissue culture, and these changes may produce among all types of cell of tissue culture plants or different organs of plants which are grown through tissue culture, and these changes may be detected as genetic change or change in visible characters of plants. In this slide we can see that we have developed a plants through टिश्यू कल्चर, दैट इज़ वी हैव डेवलप्ड कैलस, और कैलस जो है उसमें आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है. उसमें ये होता है कि जो एम्ब्रियोजेनिक कैलस जो है वो आफ्टर सक्सेसिव सब कल्चरिंग एम्ब्रियोजेनिक कैलस में कन्वर्ट होती है, और एम्ब्रियोजेनिक कैलस में फिर एम्ब्रियोजेनिक कैलाई जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ जाते हैं कि वो रूट्स और शूट्स प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हम जब डिफरेंट प्लांट्स को सेपरेटली ट्यूब्स में ग्रो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट जो हैं उनके करेक्टर्स डिफरेंट हैं. दिस इज़ ड्यू टू सोमा क्लोनल वेरिएशन. कि जो टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स हैं, कैलस कल्चर ग्रोन प्लांट्स हैं, इनमें सब जो है वो आइडेंटिकल करेक्टर्स के नहीं हैं, बल्कि इनमें प्लांट्स में वेरिएशन है, एंड दिस वेरिएशन इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन. The basic feature of soma clonal variations are variation in number and structure of chromosome. This means that through tissue culture, plants may have change in the number and structure of chromosomes, and these changes are visible in regenerated plants in the form of change in visible characters like change in leaf shape, color, and plant growth rate, etc. So, genetic change produced through soma clonal variations are expressed in the form of change in the visible characters, and these changes are generally heritable and transferred in plants population even after planting plants into field. Soma clonal variation may be produced by genetic mean or epigenetic means. Genetic means is permanent change in the plant characters, that is change because this change is in DNA sequence or mutation in DNA sequence, and this change occurs at high frequency in tissue culture grown plants. And epigenetic change is non-heritable change, that is change in the expression level expression of genes, and this change is temporary or temporary change in phenotypic characters, and this change occurs at low frequency. Means कि सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है उसकी जो मैकेनिज्म है वो टू मैकेनिज्म है. एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे कि परमानेंट चेंज प्लांट में आ जाती है जो कि टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स है, लेकिन जो एपिजेनेटिक चेंज है वो प्लांट्स में एक प्लांट में आती है, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन है इसमें प्लांट जो है वो अपने करेक्टर्स को दोबारा रिटेन कर लेता है, बिकॉज दिस चेंज इज नॉट परमानेंट चेंज, इट इज टेम्पररी चेंज ड्यू टू एपिजेनेटिक और ड्यू टू वेरिएशन इन और चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ लेवल ऑफ जीन्स. कि जीन्स जो है वो किसी टाइम जो है उनका एक्सप्रेशन कम या ज़्यादा है तो उसमें कुछ फिजिकल करेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, या प्रोटीन कभी एक जीन डिफरेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस करता है, तो इस तरह से जो है एपिजेनेटिक चेंजेस आती हैं. लेकिन जेनेटिक चेंज जो है वो एक परमानेंट चेंज है जिससे कि प्लांट में जो करेक्टर्स हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं. There may be various causes of soma clonal variations. These causes may be physiological, produced due to application of plant growth hormones in plant tissue culture media, and these changes may also be biochemical changes due to change in the expression of enzyme or alteration of metabolic pathways. But the most important of these changes are genetic causes. Genetic causes में जो है वो टिश्यू के जो ग्रोन प्लांट्स जो है इनमें परमानेंट चेंज प्रोड्यूस होती है. Plant tissue culture media is supplemented with various
growth regulators like cytokinin and auxin to induce processes like callus induction and organ formation। कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया जिसमें हम प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन से सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि ऑर्गेनोजेनेसिस और कैलस फॉर्मेशन जैसे प्रोसेस जो है वो इन्हांस कर सकें। तो ये जो केमिकल्स हैं दे ट्रिगर वेरियस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, और इस तरह जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स में सोमा क्लोनल वेरिएशन कॉज करते हैं और या उसमें फिनोटिपिक और जेनेटिक चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ कल्चर कंडीशंस हैं लाइक अगर हम टेम्परेचर जो है वो उसकी वेरिएशन कर देते हैं या हम लाइट इंटेंसिटी की वेरिएशन कर देते हैं तो इस तरह से भी जो है वो सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन प्लांट जो है उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काज है वो जेनेटिक कॉज है, और जेनेटिक कॉज जो है वो इसकी वेरियस लेवल्स हैं लाइक चेंज इन दी क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन दी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम नंबर जो है उसके चेंजेस के भी डिफरेंट लेवल्स हैं लाइक यूप्लॉइडी जो है उसमें क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट जो है वो चेंज हो जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी मीन्स के इसमें जो है वो चेंज इन क्रोमोसोमल डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी मीन्स के जो क्रोमोसोम जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती है, और मोनोप्लॉइडी मीन्स के रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर की हैप्लॉइड जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस टू हैप्लॉइड। उसके बाद जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं दीज में बी डिलीशन, इन्वर्शन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशंस आर changes in the chromosome when chromosome changes in the any fragment of chromosome and one part of chromosome is deleted, and inversion जो है उसमें ये होता है कि ये म्यूटेशन की या क्रोमोसोम म्यूटेशन की टाइप है जिसमें कि वन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड टर्न अपसाइड डाउन एंड रीजॉइन और रीअटैचेस। तो इस तरह से जो है ये टर्न अपसाइड डाउन होके तो इसमें इन्वर्टेड फ्रेगमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद डुप्लीकेशन है कि क्रोमोसोम फ्रेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है कि उसकी जो है वो डबलिंग हो जाती है। ट्रांसलोकेशन मीन्स कि क्रोमोसोम जो है वो उसका वन पार्ट जो है वो एक्सचेंज मूव करके या शिफ्ट होके दूसरे क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो जेनेटिक कॉजेज हैं फॉर सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्रोमोसोम के साथ जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट या स्पेसिफिक जीन में भी म्यूटेशन जो है उससे भी सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो जीन या डीएनए फ्रेगमेंट में जो म्यूटेशंस हैं दीज में भी ट्रांजिशन, इन्वर्जन और डिलीशन एंड ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन जो है वो ये है कि उसमें ये वो म्यूटेशन की टाइप है व्हेन वन डीएनए फ्रेगमेंट इज म्यूटेटेड लाइक प्यूरिन बेस जो है वो चेंज होके किसी दूसरी प्यूरिन बेस में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक ए इज कन्वर्टेड इनटू एडेनिन इज कन्वर्टेड इनटू थायमीन, या साइटोसिन जो है वो ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो एक प्यूरिन बेस जो है वो दूसरी प्यूरिन बेस में कन्वर्ट होती है, या एक पायरिमिडीन बेस जो है वो दूसरी पायरिमिडीन बेस में जो है वो उसमें म्यूटेट हो जाती है। लेकिन ट्रांसवर्जन जो है ये जीन या डीएनए म्यूटेशन का वो मेथड है जिसमें एक प्यूरिन बेस जो है वो पायरिमिडीन बेस में कन्वर्ट हो जाती है, या एक पायरिमिडीन बेस जो है वो प्यूरिन बेस में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से जो है वो इंसर्शन में ये है कि क्रोमोसोम का कोई दूसरा फ्रेगमेंट जो है वो उसमें इंसर्ट हो जाता है और इस तरह जो है वो जीन में म्यूटेशन प्रोड्यूस होती है। डिलीशन में ये है कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिलीट होता है और इस तरह से जो है ना वो क्रोमोसोम या डीएनए सीक्वेंस या जीन में जो है वो म्यूटेशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं अगर ये किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट में एक्टिवेट हो जाएं तो ये भी जो है वो सोमा क्लोनल वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन काज कर सकते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यू नो दीज आर जंपिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स के मूवेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो कि जीनोम में जो है वो जंप करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की भी ऑटोमेटिक एक्टिवेशन प्रोसेस से जो है उससे भी जेनेटिक चेंज आती है और सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऑल दीज जेनेटिक चेंजेस में कॉज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन प्रोटीन और मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की चेंज में क्या होगा कि डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो
या तो उसमें डिलीशन हो सकती है या एडिशन जो है, ये सब चीज़ें जो है हम डीएनए के फ्रेगमेंट के रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन जो है उसकी एक्टिविटी जो है या उसकी स्ट्रक्चर जो है वो गेन या लॉस हो सकती है, इससे भी हम प्रोटीन के एनालिसिस से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो प्रोटीन लेवल जो है उसकी स्पेसिफिक प्रोटीन के लेवल में भी चेंज आ सकती है ड्यू टू सोमा क्लोनल वेरिएशन। एंड एक और फैक्टर जो कि सोमा क्लोनल वेरिएशन काज कर सकता है, दैट इज़ मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। कि डीएनए जो है वो वी नो दैट के प्रोसेस ऑफ मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड इन डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड विदाउट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। की डीएनए सीक्वेंस के चेंज हुए बगैर जो है मिथाइल ग्रुप डीएनए में ऐड होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जीन के को सप्रेस कर देते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनएक्टिवेट करते हैं। तो मिथाइलेशन जो है ये भी डीएनए जो है वो उसमें चेंज लेवल को करती है, एक्सप्रेशन को, और इस तरह से जो है वो सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। Now, biochemical causes of soma clonal variation are lack of photosynthetic ability due to alteration in carbon metabolism, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की में भी अगर चेंज आ जाए तो उससे भी जो है वो सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। उसके अलावा हम सिलेक्शन के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो हम अपने प्लांट ग्रोथ मीडिया में यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक का यूज़ जो है ये भी सोमा क्लोनल वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बायोकेमिकल कॉजेज़ भी हैं इंक्लूडिंग जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल काजेज़ के अलावा। तो ये सब जो है वो रीजंस हैं जो कि सोमा क्लोनल वेरिएशन प्लांट्स में प्रोड्यूस कर सकती हैं। We can detect soma clonal variation in plants and we can also isolate soma clonal variants। कि जो हम सोमा क्लोनल वेरिएंट्स जो हैं जो कि इस प्रोसेस से जो डिफरेंट वेरिएंट प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं हम उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, हम इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो इसकी डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। कि फर्स्ट मेथड we can analyze morphological or visible characters, like we can analyze its qualitative characters like plant height, maturity date, flowering date and leaf size। जब हम प्लांट्स को फील्ड में या अपने एक्सपेरिमेंटल हाउस में या ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं तो हम इसका कंप्लीट डाटा लेते हैं जिसमें हम उसकी डिफरेंट जो विजिबल करैक्टर्स हैं उनको मेजर करते हैं। लाइक प्लांट हाइट है, उसकी मेच्योरिटी लेवल है कि वो कौन सा प्लांट कब मेच्योर हो रहा है, उसकी फ्लावरिंग डेट है, लीफ साइज़ है, रूट साइज़ है, उसका स्टेम साइज़ है। इस तरह से हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स से हम उसके क्वालिटेटिव डाटा से हम जो है उसकी वेरिएशन इन डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर जो है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं या एनालाइज करते हैं। उसके अलावा क्वान्टिटेटिव करेक्टर्स से जो है वो यील्ड ऑफ फ्लावर्स हैं कि कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और कितने नंबर ऑफ़ सीड हैं, वैक्स कंटेंट्स हैं। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट उसके और पैरामीटर्स हैं लाइक नंबर ऑफ़ उसमें कितने लीव्स हैं। इस तरह से जो है वो करेक्टर जिनसे कि हम वेरिएशन को डिटेक्ट कर सकें हम उनको यूज़ करके तो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो प्लांट्स में सोमा क्लोनल वेरिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वेरिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय साइटोलॉजिकल स्टडीज़। साइटोलॉजिकल स्टडीज़ मीन कि वी कैन स्टडी क्रोमोसोम्स एंड वी कैन यूज स्टेनिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लाइक रूट टिप, लीफ टिप, और हम इनको रूट और शूट के जो टिश्यूज़ हैं हम इनको आइसोलेट करके तो हम इनको डिफरेंट स्टेन्स लाइक एसिटोकार्मीन जो मोस्ट कॉमन है, और उसके अलावा फ्लूगिन है वो भी एक स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है। तो इससे जो है वो क्रोमोसोम की नंबर और मॉर्फोलॉजी को हम माइक्रोस्कोप में इजीली डिटेक्ट करके तो हम वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या वेरिएशन है। और मीन्स के ये वेरिएशन हम क्रोमोसोम नंबर से डिटेक्ट कर सकते हैं या क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी से कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और इसके अलावा हम जो है वेरिएशन डीएनए कंटेंट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डीएनए कंटेंट जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए साइटोफोटोमेट्रिक मेथड जो है वो यूज़ होता है। इससे हम डीएनए कंटेंट जो है वो न्यूक्लियाई डिफरेंट प्लांट्स के न्यूक्लियाई को आइसोलेट करके तो उसमें डीएनए कंटेंट्स की मेजरमेंट से हम वेरिएंट्स जो हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्रोमोसोम
we can find change in concentration of enzymes, protein, chemicals, product like pigments हैं, alkaloids and different amino acids जो है उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटेक्ट करके तो हम जो है वो सोमा क्लोनर वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो ज़्यादा वेरिएबल हैं हम उनको आइसोलेट करके उनका फर्दर एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा जो है हम डिफरेंट जो हमारे सोमा क्लोनर वेरिएशन से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं हम उनके डिफरेंट बायोएसिस करते हैं, लाइक हम उनको पैथोजन या टॉक्सिन जो है उनके साथ एक्सपोज करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि विच आर डिजीज रेजिस्टेंट और विच आर पैथोजन रेजिस्टेंट, और इस तरह से जो है हम जो है वो इसके अलावा जो है हम फील्ड में जाने से पहले या फील्ड में जाने से पहले इन प्लांट्स को हम कल्चर मीडिया में भी हम इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। हम इनको डिफरेंट पैथोजेंस और डिफरेंट टॉक्सिन जो है उनके साथ एक्सपोज करते हैं, और जो प्लांट इनमें सर्वाइव कर जाते हैं वही नो दीज आर रेजिस्टेंट टू दीज डिजीज़, और हम इन वेरिएंट्स को आइसोलेट कर लेते हैं, उनका फर्दर एनालाइज करते हैं। उसके अलावा जो है हम डिजीज़ के अलावा हम हर्बिसाइड जो है डिफरेंट जैसे ग्लाइफोसेट है और बास्ता वगैरह है, हम इनकी भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि जो हमारा टिश्यू कल्चर मीडिया है उसमें फाइनल स्टेजेस में अपने प्लांट्स को हर्बिसाइड मीडिया के साथ एक्सपोज करते हैं। ये मीडिया में हर्बिसाइड जो है वो हम इंक्लूड कर देते हैं, और जो प्लांट उस हर्बिसाइड की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं तो दीज प्लांट्स आर सिलेक्टेड, और उनको सिलेक्ट करके हम जो है वो फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं टू डिटेक्ट सोमा क्लोनर वेरिएंट्स, एंड वी आइसोलेट दी सोमा क्लोनर वेरिएंट्स विच वी फाइंड और विच वी थिंक दीज आर यूजफुल, और हम इनकी फर्दर स्टडी करके हम इनसे जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो हम अगर सोमा क्लोनर वेरिएशन जो है हम इनको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस टॉलरेंट जो है वो वेरिएंट जो है वो भी हम सोमा क्लोनर वेरिएशन से आइसोलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं जो कि एक बहुत इशू है, हॉट इशू है, जो कि क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कि ड्राउट और हीट और उसके अलावा जो है वो कोल्ड है और वाटर लॉगिंग, ये डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं। तो हम ये स्ट्रेसेस जो है वो प्लांट्स को जो है वो देते हैं एट फाइनल स्टेज ऑफ टिश्यू कल्चर, और इस तरह से जो है ना हम जो इन स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, विद स्टैंड करते हैं, हम उन प्लांट्स को सेपरेट कर लेते हैं और उन वेरिएंट्स को सेपरेट करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम उनकी फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो हम अगर हम सेलिनिटी को देखें तो हम टोबैको प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल, हम उनको हाई साल्ट कंसनट्रेशन में ग्रो करवाते हैं, और इस तरह से हम उनकी हाई साल्ट टॉलरेंट सेल लाइंस को आइसोलेट करते हैं। उसके अलावा वाटर लॉगिंग है, ड्राउट है, उसकी भी सेल लाइंस को आइसोलेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंट की फॉर एग्जांपल पियर है उसमें हम उनकी सेल लाइंस को आइसोलेट करते हैं। इस तरह से इन लाइंस को आइसोलेट करके हम फर्दर स्टडी करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर बेनिफिशियल पर्पसेस के। यहाँ इनसे हम जो है वो अपने, क्योंकि ये केमिकल चेंजेस जो हैं या ये चेंजेस जो हैं वो परमानेंटली प्रोड्यूस हो गई हैं, तो हम इन चेंजेस से बेनिफिशियल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है वो मिनरल टॉक्सिसिटी टॉलरेंट जो है वो भी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एक सोरगम इसकी एग्जांपल है कि हम जो है वो सोरगम प्लांट्स को हाइट जो है वो मिनरल से एक्सपोज करते हैं, और जो प्लांट जो है वो इन कंडीशंस को बियर कर लेते हैं या इनमें सर्वाइव करते हैं, हम उनको सिलेक्ट करके तो हम इनकी फर्दर स्टडी करते हैं, और हम इनको बेनिफिशियल पर्पस के लिए या हम इनको मिनरल जो है वो टॉलरेंट प्लांट के तौर पे हम इनको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। There are various advantages of soma cloner variations. सोमा क्लोनर वेरिएशंस के बहुत से एडवांटेजेस हैं जो हमने अभी देखा है कि हम जो सोमा क्लोनर वेरिएंट्स हैं हम बहुत सारे बेनिफिशियल पर्पस के लिए हम उनको जो है वो टिश्यू कल्चर मीडिया से हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, और हम इनसे जो है वो बेनिफिशियल पर्पस या बेनिफिशियल जो है वो अपने करैक्टर जो है उनके प्लांट्स को हम आइसोलेट करके और सेपरेट करके हम उनका फर्दर एनालाइज करके तो हम इनसे प्लांट्स जो है इम्प्रूव करैक्टरिस्टिक्स के हासिल कर सकते हैं। इसका जो है वन ऑफ दी मेजर इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, के हम जो सोमा क्लोनर वेरिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम हर्बिसाइड टॉलरेंट है, उसके अलावा जो है वो इंसेक्टिसाइड
टॉलरेंट है या इंसेक्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं हम, या हीट है, ड्राउट है, डिफरेंट स्ट्रेसेस टॉलरेंट प्लांट्स हैं, हम इन सब प्लांट्स को आइसोलेट कर लेते हैं या इनको हम डिटेक्ट करके इन वेरिएंट्स को तो हम इनको फर्दर जो है एनालाइज करके और फर्दर हम इनके एक्सपेरिमेंट से हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा दूसरा जो है वो या एक और सोमोक्लोनर वेरिएशन का एडवांटेज है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ एडिशनल जेनेटिक वेरिएशन। कि हम जानते हैं कि सोमोक्लोनर वेरिएशन से जो है वो ऑटोमेटिकली जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है और हम इन जेनेटिक वेरिएशन को डिफरेंट मेथड से डिटेक्ट करते हैं, तो हमें जो है वो हम एडिशनल जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है कि प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें जेनेटिक चेंजेस जो है वो सोमोक्लोनर वेरिएशन से प्रोड्यूस होती हैं। एक और एडवांटेज सोमोक्लोनर वेरिएशन का ये है कि वी कैन इंक्रीज एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वी नो दैट प्लांट प्रोड्यूस मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड दीज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो हम सोमोक्लोनर वेरिएशन से ऐसे वेरिएंट्स जो है वो आइसोलेट करते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके उनको यूज़ करके और उनसे जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करके तो हम इंक्रीज और इम्प्रूव जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सोमोक्लोनर वेरिएशन का हमने ये एक एडवांटेज ये भी देखा कि वी कैन सेलेक्ट प्लांट रेजिस्टेंट टू वेरियस टॉक्सिन्स लाइक हर्बिसाइड्स, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, मिनरल टॉक्सिसिटी, कि हम जो डिफरेंट स्ट्रेसेस जो हैं उनको उनसे प्लांट्स को एक्सपोज करते हैं और जो सोमोक्लोनर वेरिएंट्स जो हैं वो इन प्लांट्स या इन कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, हम उनको सिलेक्ट करके आइसोलेट करके फर्दर हम उनको मल्टीप्लाई करके तो उनसे हम जो है वो अपने प्लांट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है वो सोमोक्लोनर वेरिएशन जो है वो इट इज़ वेरी यूजफुल इन ब्रीडिंग ऑफ ट्री स्पीशीज़। के वी नो ट्रीज ग्रो वेरी स्लो, इनकी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो है, तो हम जो है वो टिश्यू कल्चर से हम जो है वो जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो सोमोक्लोनल वेरिएंट्स जो हैं वो ट्री प्लांट्स के प्रोड्यूस होते हैं, हम उनको जो है वो इजीली फील्ड में ग्रो करके तो हम जो है वो बहुत जल्दी अपनी ट्रीज़ की प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो लाइक एडवांटेजेस सोमोक्लोनल वेरिएशंस के बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें एक सीरियस एडवांटेज ये है कि इट अकर्स इन ऑपरेशन या जो है सोमोक्लोनर वेरिएशन जो है वो उस वक्त उसका जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि व्हेन वी नीड क्लोनल यूनिफॉर्मिटी, तो सोमोक्लोनर वेरिएशन जो है वो एक अननेसेसरी चीज़ बन जाता है कि हमें सोमोक्लोनर अगर हमें वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो है हम अपने प्लांट्स को डिफरेंट ग्रोथ कंडीशन देते हैं, डिफरेंट जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, तो इन सब से जो है वो सोमोक्लोनर वेरिएशन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है। तो इन सम कंडीशंस वी डू नॉट नीड दीज चेंजेस और वी नीड क्लोनल यूनिफॉर्मिटी और वी वांट टू माइक्रो प्रोपोगेट आवर प्लांट्स। तो इसमें सोमोक्लोनर वेरिएशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज प्लांट्स में चेंज प्रोड्यूस करती है और इस तरह से जो है वो ये एक अननेसेसरी जो है वो चीज़ बन जाती है। उसके अलावा समटाइम्स सोमोक्लोनर वेरिएशन में लीड टू अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स कि वी डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस सोमोक्लोनर वेरिएंट्स, लेकिन फिर भी जो है वो ऑटोमेटिकली टिश्यू कल्चर में जो ग्रोथ कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं उससे सोमोक्लोनर वेरिएंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये वेरिएंट जो सोमोक्लोनर वेरिएशन से प्रोड्यूस होते हैं दीज आर रैंडम एंड जेनेटिकली अनस्टेबल। मोस्टली ये जो वेरिएंट्स हैं ये रैंडम है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रैंडम और हिट एंड ट्रायल से हो रहा है टिश्यू कल्चर मीडिया में। तो मोस्टली जो प्लांट सोमोक्लोनर वेरिएशन से मिलते हैं दीज आर जेनेटिकली अनस्टेबल एंड वी डू नॉट नो देयर फ्यूचर। हमें इनका फ्यूचर नहीं पता कि इनका जो है वो कहाँ पे जाके इनका जेनेटिक्स जो है वो स्टेबल होगी और कहाँ पे जो है वो इनका जो है हम इनको एज अ स्टेबल प्लांट या एज अ स्टेबल इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सोमोक्लोनर वेरिएशन का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल। कि इसकी सोमोक्लोनर वेरिएशन का ये डिसएडवांटेज है कि हमें सोमोक्लोनर वेरिएशन की स्टडी करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे फील्ड ट्रायल की ज़रूरत है और बहुत जो है वो वास्ट स्केल पे फील्ड चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में से हमें वेरिएंट्स को फाइंड करना और बेनिफिशियल करैक्टर्स को फाइंड करना और स्क्रीनिंग करना
और सिलेक्शन करना ये एक बहुत लिबोरियस वर्क है। तो इसके लिए जो है वो इसलिए सोमा क्लोनर वेरिएशन जो है ये इसका ये डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स वेरी एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स, कि हमें बहुत एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स करने पड़ते हैं। तो इसके अलावा एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स एग्रोनॉमिक ट्रेड्स लाइक यील्ड एंड क्वालिटी, की जो कम्प्लेक्स एग्रोनॉमिक ट्रेड्स या क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं जिसमें कि इन्वायरमेंट और जो है वो जेनेटिक इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, उसके लिए जो है वो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है लाइक यील्ड है, क्वालिटी है। इसके लिए जो है वो सोमा क्लोनर वेरिएशन का प्रोसेस जो है वो सूटेबल नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोमा क्लोनर वेरिएशन।